Hello students, very good morning. All of you are warmly welcome in this YouTube channel that has been planned to provide you online classes in English from ML Convent Group of Schools. Students, nowadays we are doing with the second chapter in prose section, that is Nelson Mandela Long Walk to Freedom. We had got 3 videos of this chapter. It is the final and last and final video in this chapter, and as we all know it very well that this chapter is a part is an extract that has been taken from his autobiography, I mean Nelson Mandela's autobiography, Long Walk to Freedom. You all are well known to the figure Nelson Mandela. He was first black president of South Africa, who was elected in 1994 and who broke the shackles of apartheid from the history of South Africa. He remained more than 30 years in South African jails. He faced many hardships to recover the old ways of South Africa. In our earlier videos, we have seen that how apartheid was started by white people of his own country during the first decade of 20th century, and in 1994, I mean the last century of the 20th century, it was possible for all the freedom fighters of South Africa to stand the country, to make stand the country without apartheid. We have also seen that Mr. Mandela has given his tribute to various great persons who sacrificed their lives for the freedom of the country, that was South Africa. After that, he told the importance of those freedom fighters in his life. बताया कि जो उनके अंदर करेज है, उस करेज को उन्होंने इन्हीं फ्रीडम फाइटर्स के से सीखा है. इन्हीं फ्रीडम फाइटर्स ने उनको इस करेज को सिखाया है. करेज क्या है, इसकी डेफिनेशन he gave a very beautiful explanation of courage, कि जो करेज होता है वो डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि डर के ऊपर जीत की स्थिति को करेज कहा जाता है. एक जो ब्रेव मैन है, एक साहसी आदमी के अंदर डर नहीं होता, ऐसी बात नहीं है, बल्कि उसने डर के ऊपर जीत हासिल कर ली है, ऐसी बात होती है. और फिर आपने देखा कि मिस्टर मंडेला ने बताया कि बच्चा जब पैदा होता है, when a child is born in any society, then it is the society who teaches which things, which opinion, which thoughts, which ideas are to be liked and what are to be disliked or hated. It is society who plays role in teaching the children to love for something or to hate for something. So society must teach the children to love, not to hate, because love is
more natural than to that of hatred. And after that we came to know कि अगर कोई इंसान अच्छा है तो उसकी अच्छाई जो है, his goodness comes out. ऐसा नहीं कि उसकी अच्छाई को हर समय के लिए दबा के रख दिया जाए, कभी न कभी उसकी अच्छाई तो सामने आएगी ही। अच्छाई को, किसी भी इंसान की अच्छाई को कभी भी खत्म नहीं किया सकता। अच्छाई एक ऐसी आग है जिसको बुझाया नहीं सकता, हाँ कुछ समय के लिए सप्रेस किया सकता है। And at last that we have learned in this chapter, Mr. Mandaya tells कि हम सब के पास दो तरह के obligations होते हैं। We all have two types of obligation. One obligation is towards one's family and another obligation is towards one society. एक responsibility होती है जो कि हमारे अपने परिवार से होती है, अपने पेरेंट्स से होती है, अपनी वाइफ से, अपने बच्चों से होती है। तो वहीं पे दूसरी हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हमारे अन्य भाइयों से होती है, हमारी कम्युनिटी से होती है, हमारी कंट्री से होती है। सामान्य स्थितियों में अगर सिविल और ह्यूमन सोसाइटीज की बात करें तो एक सामान्य व्यक्ति भी अपने दोनों ऑब्लिगेशंस को अच्छे से पूरा कर लेता है, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में, स्पेशली उस व्यक्ति के लिए जो एक ब्लैक या कलर्ड फैमिली में पैदा हुआ है, उसके लिए दोनों ऑब्लिगेशंस को एक साथ पूरा करना अलाउड नहीं था। अगर आप अपनी फैमिली के ऑब्लिगेशन को पूरा करते हैं तो आपको सोसाइटी के प्रति आपके ऑब्लिगेशन से को करने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर आप ऐसा करने का प्रयास करेंगे then you will be arrested, you will be put behind the bars. वहीं पे अगर आप अपने आप को सोसाइटी के प्रति जो आपकी कंट्री, आपकी जो ऑब्लिगेशन है, देश के प्रति आपका जो ऑब्लिगेशन है, आपके अन्य भाइयों के प्रति आपका जो ऑब्लिगेशन है, अगर उन ऑब्लिगेशन को पूरा करने का प्रयास करेंगे, इफ यू विल ट्राई टू फुलफिल योर ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स योर सोसाइटी, टुवर्ड्स योर कम्युनिटी, टुवर्ड्स योर कंट्री और अदर पीपल ऑफ द कंट्री, in that condition you will be prevented to fulfill your responsibilities towards your family, towards your children, towards your parents, towards your wife and towards your family members. आपको अलाउ नहीं किया जाएगा कि आप दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक साथ पूरा करें। Let us start the last part of the chapter, page number 22, second paragraph. I was not born with a hunger to be free. I was born free, free in every way that I could know. Author tells over here. The author did not have the plan to stand against the apartheid system early in life. कोई भी बच्चा नहीं होता जब वो पैदा होता है तो, am I right? जब ऑथर पैदा हुआ था तो अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट वो फाइट करेगा, इस सिस्टम के अगेंस्ट वो लड़ेगा, उसका ऐसा कोई प्लान नहीं था। He was not born with a hunger to be free. फ्री होने के हंगर के साथ वो पैदा नहीं हुआ था। He was not born with that hunger. I was born free. वो तो व्यक्ति की तरह फ्री पैदा हुआ था, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, जिस तरीके से वो हम समझ सकते हैं, हर तरीके से फ्री ही हम पैदा होते हैं। He lived his childhood like any normal child in South Africa. वो भी साउथ अफ्रीका किसी भी नॉर्मल बच्चे की तरह सामान्य तरीके से जीवन यापन किया।
free in every way that I could know. Whatever way that was taught to me, in every way I was born free. I was free to run in the fields near my mother's hut. I was free to swim in the clear stream that ran through my village. I was free to roast mealies under the stars and ride the broad backs of slow moving bulls. As it is, only these all are the requirement and understanding of a child. एक बच्चे की जो समझ होती है, उस समझ के प्रति हमको जो भी चाहिए था, हमको हम सब कुछ करने के लिए फ्री थे. अपनी माँ के हट के पास की जो फील्ड है उसमें दौड़ने के लिए फ्री थे. आई वॉज फ्री टू रन इन दैट फील्ड. आई वॉज फ्री टू स्विम. नदी में, क्लियर स्ट्रीम में स्विमिंग करने के लिए हम फ्री थे, जो कि हमारे गांव में बहती थी. जो कि मिस्टर मंडेला के गांव में बहती थी. ही वॉज फ्री टू रोस्ट मेलीज रोस्ट करने के लिए वो फ्री थे, खुले आसमान के नीचे, खुले अंडर द स्टार्स. और यही नहीं, स्लो मूविंग बुल्स के पीठ पे बैठ के राइड करने के लिए भी मिस्टर मंडेला वॉज फ्री. एक नॉर्मल बच्चे की जो भी इच्छा होती है, उन सब को पूरा करने के लिए जो भी जरूरत होती है, उन सब के लिए ऑथर फ्री था. ऑथर वाज फ्री. Then, as long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. By the time Nelson Mandela obeyed his father, जब तक वो अपने फादर के रूल्स को फॉलो करता रहा, जो उसकी ट्राइब के कस्टम्स हैं उनको फॉलो करता रहा, there was no problem. He only had to follow the rules set up by his father or the customs of his tribe. I was not troubled by the laws of man or God. हमें मैन और गॉड के बनाए गए किसी नियम से कभी कोई दिक्कत नहीं हुई. Beginning, I was also as normal, as simple, just like any other man. Then, what happened that made him to turn his ways and become a revolutionary? ऐसा क्या हो गया? शुरुआत में तो वो भी एक सामान्य बच्चा था, हमारी तरह, आपकी तरह. पेरेंट्स की बातों को मानना है. आप सभी लोग स्कूल आते हो, स्कूल की बातों को मानना है. इसमें कोई दिक्कत नहीं थी. Then it was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. आपको किसी चीज की हंगर तो तब फील होगी ना, जब कि आपको पता होगा कि ये चीजें आपको मिल सकती हैं. एक बच्चे को जिस चीजों की जरूरत थी, वो चीजें मिस्टर मंडेला को आसानी से मिल रही थी. लेकिन as soon as he grew up, जैसे जैसे वो बड़े हुए, he began to learn the facts as to how people of color are treated. वो देखे अपने चारों तरफ कि उनके कलर के लोगों के साथ कैसे ट्रीट किया जाता है. And then he came to know that his boyhood freedom was an illusion,
तब उनको महसूस हुआ कि अरे उनके बचपन का जो फ्रीडम था, दैट वाज नॉट अ फैक्ट, दैट वाज एन इल्यूजन, एक इल्यूजन था, एक भ्रम था। और ये कब हुआ? जब व्हेन आई डिस्कवर्ड एज ए यंग मैन, जब एक यंग मैन की तरह मैंने डिस्कवर किया, मैंने पाया दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, कि हमारा जो फ्रीडम है वो तो पहले से ही हमसे लिया जा चुका है। उन्होंने महसूस किया कि he felt that his freedom has already taken from him. That I began to hunger for it, and then he began to feel hunger for the freedom. तब उनके अंदर फ्रीडम की वो भूख, वो हंगर, वो नीड, वो रिक्वायरमेंट फील होने लगी। At first, as a student, I wanted freedom only for myself. In the very beginning, when he was a student, he was desirous to get freedom. Only he want for himself. शुरुआत में जब वो बच्चा था, तब उस समय उसके फ्रीडम की रिक्वायरमेंट केवल उसकी अपनी थी। Yes. As a student, I wanted freedom only for myself. केवल मैं अपने लिए फ्रीडम चाहता था। The transitory freedom of being able to stay out at night, read what I pleased, and go where I choose. At that time, उसके फ्रीडम के पार्ट क्या थे? कि रात में जब तक चाहे वो बाहर रह ले, उसको बाहर रहने के लिए अलाउ किया जाए, या जो चीजें उसको पढ़ना पसंद है उन चीजों को पढ़ना उसको अलाउ किया जाए, या फिर वो जो कुछ करना चाहे, जहां जाना चाहे वहां जाने के लिए उसको अलाउ किया जाए। शुरुआत में उसकी ये नीड थी, अकॉर्डिंगली हिज हंगर फॉर फ्रीडम, जैसी जरूरत थी उसके मुताबिक उसकी फ्रीडम की नीड थी। He had this urge for freedom from inside earlier just for himself, like staying out night or studying whatever he want or going anywhere he choose. Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in lawful life. But later on, when he was in Johannesburg, as a young boy, as a young man, he yearned, he required, he desired for the basic honorable freedom. अपनी पोटेंशियल को अचीव करने की जो ऑनरेबल फ्रीडम्स होती हैं, बेसिक फ्रीडम्स होती हैं, उनकी इच्छा जाहिर हुई एक यंग मैन के रूप में जब वो जोहान्सबर्ग में थे। और वो रिक्वायरमेंट क्या थी? They had to struggle, I mean, having earning my keep, अपने आप को सरवाइव करने के लिए जिन चीजों की रिक्वायरमेंट थी, आई मीन कमाने की, काम करने की फ्रीडम, या फिर फैमिली बनाने की और शादी करने की फ्रीडम, या फिर द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन लॉफुल लाइफ, ऐसी फ्रीडम जिसको कि लॉफुल लाइफ में जो है ऑब्स्ट्रक्ट न किया जाए, like a peaceful marriage or family and basic amenities which everyone has access to where law and order exists. इन सब चीजों की रिक्वायरमेंट तो हमारी हम राष्ट्र में साथ में होती है ना, इन सब की रिक्वायरमेंट फील हुई उसको। But then
I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. And meanwhile, he came to know that it was not only I who was not free. There were other people, others brothers and sisters of his who were not free. केवल ऐसा नहीं था कि केवल वो अकेले था जो कि फ्री नहीं था, उसकी तरह कई उसके भाई और बहन थे जो कि फ्री नहीं थे। उसकी सोसाइटी के उसकी तरह जितने भी कलर्ड लोग थे, कोई फ्री नहीं था। I saw that it was not just my freedom that was curtailed. नेल्सन मंडेला ने फील किया, नेल्सन मंडेला felt that it was not only his freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. But it was the freedom of each and every man whose color was black or who was a colored person. Everyone's freedom was curtailed. हर आदमी की freedom curtailed थी. It was not only him whose basic rights were snatched away, but of all those who looked like him. All of them were living without freedom. That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. When I felt that it is the freedom of each and everybody who was looking like me, who is colored person, everyone's freedom has been curtailed, then I started feeling the need for the freedom of not only I, but the freedom of whole society, but the freedom of all who look like me. हम सब की freedom की आवश्यकता फील हुई। अभी greater hunger शुरुआत में उनकी freedom उनके अपने तक सीमित थी, लेकिन अब उनकी जो वो hunger थी freedom की, उसका दायरा बढ़ा। अब वो दायरा सिर्फ उनके अपने फ्रीडम से आगे बढ़कर उनके पूरे समाज के फ्रीडम के लिए हो गया, पूरी सोसाइटी के फ्रीडम के लिए हो गया। पूरी समाज की ये फ्रीडम की नीड थी कि उनको फ्री किया जाए, एंड फॉर दैट सेक उन्होंने क्या किया, ही ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया। ये कब हुआ, जब उनका जो हंगर फॉर फ्रीडम था, अब पर्सनल लेवल से इस फ्रीडम, हंगर फॉर फ्रीडम हैज गॉट enlarged फ्रॉम पर्सनल टू फ्रॉम पब्लिक। अब वो पूरी समाज के लिए, पूरी अपनी कम्युनिटी के लिए के फ्रीडम के लिए की फ्रीडम की जो है हंगर उनको फील होने लगी। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. How this all happened? ये सब कुछ कैसे हो गया? एक डरा हुआ इंसान बोल्ड इंसान कैसे बन गया? एक लॉ अबाइडिंग मैन एक क्रिमिनल कैसे बन गया? एक फैमिली लविंग हस्बैंड बिना घर का बेघर कैसे हो गया?
एक लाइफ लविंग मैन मॉन्क की लाइफ कैसे जीने लगा, ये सब कैसे हुआ? इन सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक बात थी. There was only one thing behind these all things. और वो क्या थी? वो थी उनकी डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल. अभी तक उनकी डिजायर हिज ओन फ्रीडम के लिए थी, अब उनकी डिजायर फ्रीडम ऑफ हिज पीपल के लिए होगी कि सबको जो है डिग्निटी के साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ उनको जीवन जीने का अधिकार मिलना चाहिए. उनकी दिस डिजायर ऑफ मिस्टर नेल्सन मंडेला एनिमेटेड हिज लाइफ. उसने उनकी लाइफ को एनिमेट कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया उनकी लाइफ को. I hope all of you are getting point from here. He had this fire inside him to free his people from the injustice. It was this fire that changed the author completely as a man. ये जो आग थी उनकी अपने लोगों के इम्प्रूवमेंट के लिए, उनके अपने लोगों के सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, उनके अपने लोगों के डिग्निटी के लिए, उनकी इस आग ने उनको पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दिया, चेंज कर दिया. फ्रॉम बीइंग स्केयर्ड टू अ ब्रेव, अ लॉयर टू द वन ब्रेकिंग द लॉ, अ फैमिली मैन टू अ मैन विदाउट अ होम, एंड अ लाइवली मैन इनटू बीइंग अ मंक. एक ऐसा इंसान जो कि पहले डरा हुआ था, अब वो इंसान ब्रेव हो गया. एक लॉ अबाइडिंग मैन लॉलेस बन गया. एक फैमिली मैन विदाउट होम हो गया, और एक लाइवली मैन मंक की लाइफ जीने लगा. एंड दिस ऑल हैपेंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट फायर. आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सैक्रिफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स I was allowed when I knew my people were not free. Here it was the knowledge that he and his people have restricted freedom that made him into a selfless man as opposed to before. I am no more virtuous or self-sacrificing. अब मैं वर्चुअस या सेल्फ सैक्रिफाइसिंग व्यक्ति, तनिक भी ज्यादा वर्चुअस या तनिक भी ज्यादा सेल्फ सैक्रिफाइसिंग मैन नहीं रह गया हमारे नेक्स्ट मैन से. क्यों? बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स. और अभी अब तो हमें कोई भी फ्रीडम एंजॉय करने के लिए अलाउड नहीं था. जो पहले हमारे पास फ्रीडम्स थे भी, वो फ्रीडम्स भी स्नैच कर लिए गए, क्योंकि अब मैं जान गया था कि हमारे लोग भी फ्री नहीं हैं. अब मैं जान गया था, समझ गया था कि हमारे तक जितने लोग हैं सब के सब फ्रीडम से दूर कर दिए गए. अब हम सब के लिए आवाज रेज करने लगे थे. नाउ आई हैड बिगन टू रेज माय वॉइस फॉर माय होल सोसाइटी, फॉर माय होल कम्युनिटी. सिंस आई वाज डूइंग दिस, आई वाज आल्सो स्नेच्ड इवन दोज राइट्स दैट आई वाज एंजॉयिंग अप टू नाउ. जो राइट्स मैं एंजॉय कर रहा था, वो राइट्स भी हमसे स्नैच कर लिए गए. I was restricted from even those. According to him, freedom cannot be divided. Snatching it away from some was equivalent to taking it away from everyone. So here let us proceed. That I was allowed only when
freedom is indivisible. We cannot divide freedom. The chains on any of my people were the chains on all of them. If the freedom of any person of my society has snatched away, it means the freedom of each and everybody has been snatched away. हमारे जितने भी साथी हैं, उनमें से हमारी कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं, जितने भी ब्लैक पर्सन हैं साउथ अफ्रीका में, अगर उनमें से किसी के भी फ्रीडम को स्नैच अवे किया गया, किसी के भी फ्रीडम पे चेन लगाया गया, तो इसका मतलब हम में से सब के ऊपर चेन लगाया गया, हमारे ऊपर भी चेन लगाया गया. The chains on all of my people, but the chains on me. अगर हमारे जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं, उनमें से किसी एक के ऊपर भी एक की भी फ्रीडम को स्नैच अवे किया गया, अगर किसी एक की भी फ्रीडम को से उनको दूर किया गया, इसका मतलब हम सब की फ्रीडम को खत्म कर दिया गया. I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. Very nice. He mentions that the need to free the oppressor is as high as that of the oppressed, because the oppressor is bound by cycles of hatred. Very nicely the author has, Nelson Mandela has tried to clear it. Both are needed to be liberated. It is not the need of liberation for the oppressed only, but it is the need of liberation for the oppressor also. Both oppressor as well as oppressed is in the chains. दोनों चेन में हैं, दोनों किसी न किसी बंधन में जकड़े हुए हैं. जो ऑपरेसर है केवल ऑपरेस्ड ही नहीं, ऑपरेस तो ऑपरेसर के हेट्रेड में जकड़ा हुआ है, लेकिन जो ऑपरेसर है उसके ऊपर तो हेट का चेन है, वो तो हेट के बंधन में है. और शायद ये उसके वो जो हेटेड हमारे लिए शो कर रहा है वो उसके दिल में है. हम तो हेट से बाहर से ग्रस्त हैं, हम विक्टिम हैं, लेकिन उसका जो ऑपरेसर है, ऑपरेसर का के तो हार्ट में है हेट. दैट इज मोर डेंजरस. वो ज्यादा खतरनाक है. अगर आपसे कोई घृणा करता है तो आप उसके घृणा के पात्र हैं, लेकिन वो व्यक्ति जो घृणा कर रहा है, घृणा उसके दिल में जो बैठी हुई है, उसके हाथ में जो बैठी हुई है, दैट इज मोर डेंजरस. वो ज्यादा खतरनाक है. So I knew that the oppressor must be liberated. जो ऑपरेसर है उसको भी लिबरेशन की रिक्वायरमेंट थी. Just as surely as the oppressed. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. एक ऐसा आदमी, a person who takes away the freedom of any other person is really the prisoner of hatred. अगर किसी आदमी ने आपको कैद कर रखा है तो आप तो उसकी कैद में हो, लेकिन वो आदमी जिसने आपको कैद कर रखा है वो हेट्रेड की कैद में है. और शायद हेट्रेड की कैद, द प्रिजन ऑफ हेट्रेड इज मोर डेंजरस देन दैट ऑफ दैट पर्सन. हियर Nelson Mandela clearly wants to tell us that I am not as poor victim as he himself. हम तो उसके ऑपरेशन की विक्टिम है, लेकिन वो तो हेट्रेड का विक्टिम है.
He is the prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. The oppressor is behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. जो आपका ऑप्रेसर है, ऑप्रेसर प्रेजुडाइस और नैरो माइंडेडनेस की जेल में है. Prejudice, a strong dislike without any good reason. Prejudice पूर्वाग्रहग्रस्त होना होता है कि आप किसी के बारे में जानते नहीं हो, बस बिना जाने समझे ही उसके लिए आपके दिल में डिसलाइक पैदा हो गया. Prejudice, नैरो माइंडेडनेस का शिकार है वो, उसके बार्स में है, उसके प्रिजन में है. I'm not only free, I'm not truly free if I am taking away someone else's freedom. Just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. I'm not truly free. I'm not truly free if I am taking away someone else's freedom. मैं और कोई भी व्यक्ति, सच्ची बात तो ये है कि कोई भी व्यक्ति सच में फ्री नहीं है अगर वो किसी और की फ्रीडम को लिया हुआ है. तो अगर वो उसके कारण किसी और की फ्रीडम खत्म हुई है तो इसका मतलब वो भी किसी न किसी के कैद में है. क्योंकि अगर उसने किसी की फ्रीडम लिया है मतलब उसके दिल में क्या है, उसके दिल में हेट्रेड है, उसके दिल में डिसलाइक है. तो वो आदमी तो खुद भी नैरो माइंडेडनेस या फिर व्हाट कैन यू से प्रेजुडाइस या हेटेड का शिकार है. वो कहां फ्री है? ही इज आल्सो नॉट फ्री. जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी. वो भी उसी तरीके से कैद में है जिस तरीके से मेरी फ्रीडम हमसे दूर है. The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. दोनों की ह्यूमैनिटी रॉब हो जाती है, ऑप्रेस्ड की भी और ऑप्रेसर की भी. For taking away someone else's freedom and making them a prisoner, he becomes a prisoner of baseness. Thus, he is robbed of his humanity and needs to be freed. ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड दोनों को फ्रीडम, दोनों को लिबरेशन चाहिए. ऑप्रेसर को लिबरेशन चाहिए हेट से, नैरो माइंडेडनेस से, प्रेजुडाइस से, बायस्ड फीलिंग से, और ऑप्रेस्ड को फ्रीडम चाहिए उस आदमी से. सो दोनों के फ्रीडम की रिक्वायरमेंट होती है. इन दिस वे स्टूडेंट्स, I have tried to give you a line by line explanation of the chapter. Now you are required to do with it. Thank you. Have a nice day.